Ankit Patel, and today we are going to study about Standard 10, Chapter 1, Chemical Reactions and Chemical Equations Part 2. And in this part we will be studying about combination reaction and decomposition reaction, right? Just two types of chemical reaction, that is combination reaction and decomposition reaction. So first of all, we need to know what is chemical reaction. We have already glimpsed about chemical reaction, right? That there are certain reactants or there are certain chemicals which are reacting chemically, and after this reaction, these chemicals get totally changed. Now we are getting some new kind of chemicals, and old kind of chemicals which we have used in chemical reaction, they're just consumed up, right? And new type of chemical reaction, new type of chemicals are producing. जो chemicals हम लोग ने use किए हैं वो chemicals अभी कुछ used हो चुके हैं, अभी है ही नहीं ये reaction में, right? After reaction, what is forming is something which is very different from reactants, right? जो product form अभी हो रहा है after chemical reaction वो एकदम ही reactant से different है, right? So this is about chemical reaction. Now, if we talk about combination reaction, it means when two or more than two chemicals are reacting with each other, it is forming a new type of chemical, right? It is forming a new type of product, chemical product. एक ही chemical product बनता है जब दो या दो से ज्यादा chemical एक दूसरे के साथ react करते हैं, तो ये type की chemical reactions को हम लोग combination reaction बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चलो कुछ examples देख लेते हैं. First example लेते हैं quicklime का, right? Quicklime का chemical formula है CaO. It is chemically called calcium oxide. Understood? तो चलिए सबसे पहले chemical reaction देख लेते हैं quicklime का. CaO, calcium oxide, quicklime is in the form of powder. Powder के form में होता है. When it is reacting with water, सिर्फ पानी में ही इसको मिक्स करना है, ठीक है? और हमें ये केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेट लाइम, राइट? इसको हम लोग स्लेट लाइम भी बोलते हैं. जस्ट ऐड द वाटर, पानी ऐड करो, विगरसली रिएक्ट हो जाएगा, राइट? इनफैक्ट इट विल प्रोड्यूस हीट. तो ये बैड हैंड से हम लोग को नहीं करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, राइट? It depends on amount of calcium oxide and water, how much amount of heat will produced in the reaction, right? तो ये slate lime है, और यही slate lime यूज करके हम लोग फिर white washing के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है? This slate lime actually reacting with carbon dioxide and is producing calcium carbonate. इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं, चलिए. Calcium hydroxide है ये. When it is reacting with carbon dioxide, this is in सॉलिड फॉर्म. यहाँ पर एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जब हम लोग व्हाइट वॉश कर देंगे, पानी ड्राई हो जाएगा, तब देन दिस विल बी इन सॉलिड फॉर्म, राइट? ओके, दिस इज इन गैसियस फॉर्म, और जो बनेगा वो है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? विच इज इन सॉलिड फॉर्म, और वाटर फॉर्म होगा. वाटर फॉर्म होगा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन फिर वो ड्राई अप हो जाएगा, राइट? तो कैल्शियम कार्बोनेट विल रिमेन इन सॉलिड फॉर्म है. तो जो दीवार में हम लोग ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है, स्लेट लाइम लगाया है, वो एक्चुअली बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? इट विल फॉर्म इनटू कैल्शियम कार्बोनेट. ये चौक में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग दिस स्लेट लाइम इन व्हाइट वॉशिंग, राइट? चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है. दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? ये पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा. चलो दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं. लेट्स टेक कार्बन. एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पर कोल लिया है, राइट? तो कार्बन कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में है इन कोल. देन यहाँ पर हम लोग इसको कंबस्ट करेंगे. अगेन देयर विल बी इवॉल्व ऑफ हीट, ठीक है? कोल हम लोग को मालूम है, कोल जैसे जलता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, राइट? एक बार उसको इग्निशन देना पड़ता है. वंस ignition temperature should be provided to the coal, then it will burn itself. Understood? तो यहाँ पर भी वही होगा, और वेरी सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर. It will produce carbon dioxide gas. Understood? This is also combination reaction. देखो, दो टाइप के रिएक्टेंट एक टाइप का प्रोडक्ट, दो टाइप के रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक है? ऐसे और एक बहुत अच्छा फ्यूल है, ये भी फ्यूल है, और एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है जिसका
कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, कैलोरीज पर ग्राम बहुत ज्यादा, मतलब 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट अमाउंट इज हाईएस्ट, वो है हाइड्रोजन गैस। इसका भी जब हम लोग इसको भी जब फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी H2O मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, बट इन गैसियस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एक्सप्लोजन इज अकरिंग। आप लोगों को मालूम है जब रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है तो कैसा एक्सप्लोजन होता रहता है कंटिन्यूअसली, बिकॉज ऑफ व्हिच रॉकेट इज गोइंग अप, अंडरस्टूड। So this is because of hydrogen gas is reacting with oxygen. ये रिएक्शन वहां पर भी होता है, राइट, और वहां पर पानी नहीं बनता है, वहां पर स्टीम बनता है, वेपर बनता है, अंडरस्टूड। So this is one more chemical react, I mean combination reaction। तो फ्यूल ही देखते हैं तो और एक फ्यूल देख लेते हैं, that is मीथेन गैस। मीथेन गैस हमारे कुकिंग स्टोव में आता है, राइट, the gas which we are getting from CNG is actually मीथेन गैस। हमारे घर में पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, उसमें भी ज्यादातर मीथेन गैस ही होता है। इवन अगर एलपीजी आता है तो उसमें भी काफी अमाउंट तक मीथेन गैस होता है, राइट। चलो देख लेते हैं, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस, इट इज इन गैसियस फॉर्म, ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, राइट, इट इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको मिल जाता है, हम लोग जैसे गैस स्टोव ओपन करते हैं तो गैस स्टोव के होल्स ओपन ही होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल गिव अस तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये यहाँ पर हम लोग ने फ्यूल का एक्चुअली रिएक्शन देखा। तो हम लोग ने क्या देखा कि ये तीनों रिएक्शन जो है, ये तीनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें से एनर्जी इवॉल्व, जिसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो इट इज गिवन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल ये दे दिए हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये तीनों एक्चुअली ये तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो बुक में हम लोग को थोड़ा और कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे दी है, राइट, दैट इज burning of methane gas which is producing carbon dioxide gas and water vapor. Here also water vapor is forming, right? हम लोग को मालूम है गैस में कभी आगे बढ़ने में पानी नहीं बनता है, राइट, तो स्टीम बन जाता है, वाटर वेपर जो बनता है दैट इज इन गैसियस फॉर्म, वो फिर हवा में मिक्स अप हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिएक्शन इज अकरिंग। और एक ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके चलो, ये थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो पूरा है उसको थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं। ये रिएक्शन ऐसा है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो हमारे हर सेल्स में होता है, राइट, व्हिच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम लोग मानते हैं कि रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट इट इज कॉल्ड एक्चुअली ब्रीथिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन कुछ और है, पता लगा वो रेस्पिरेशन क्या है? हम लोग जब भी कोई खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होकर उसमें से बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। This glucose molecules is absorbed in our blood, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहले एब्जॉर्ब होता है और फिर बॉडी में डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई सबको ग्लूकोज की जरूरत है, तो सबको ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय ब्लड, अंडरस्टूड। तो ब्लड से सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया ग्लूकोज। अब क्या होगा इसमें कि एक बार ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, बाद में ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा। आप सही सुन रहे हो, ठीक है, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, अंडरस्टूड। ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होना मतलब क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज एक्चुअली ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज्ड अप होंगे रिएक्शन में, और उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड। तो रिएक्शन भी देख लेते हैं उसका, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है तो इट इज एन एक्वस फॉर्म, पानी में डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ब्लड में वाटर है, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर है, तो एवरीवेयर वाटर इज देयर इन आवर बॉडी and glucose is dissolved in that water, understood?
हम लोग सांस लेते थे उसमें ऑक्सीजन भी मिल जाता है ब्लड में, और वही ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। इसका बैलेंसिंग करना है तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का बैलेंसिंग किया ना, एग्जैक्टली उसका वही बैलेंसिंग है, बस डिफरेंस है कि ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था वहां पर, यहाँ पर एकदम उल्टा है। अंडरस्टूड? दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट राइट नाउ। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्वस, क्योंकि ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में होता है, एवरीथिंग इज देयर इन वाटर फॉर्म, ये तो खुद ही वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इज अकरिंग इन आवर बॉडी। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, चलो लिख देते हैं दिस इज ग्लूकोज। और ये रिएक्शन होता क्यों है अपने बॉडी में? ये रिएक्शन होता इसलिए है क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा तभी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। अभी मैं जो ये गिर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सोच रहा हूं, कैमरा के सामने देख रहा हूं, ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी दैट इज देयर इन माय बॉडी, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस केमिकल रिएक्शन। यही केमिकल रिएक्शन जो मेरे हर सेल में हो रहा है वही मुझे इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इवन आई एम स्टैंडिंग हियर यूजिंग दैट एनर्जी, राइट? दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एक्चुअली ये 3 रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बाकी ये 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। दिस 2 आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। All these 5 reactions are exothermic, but if we talk about combination reaction, only first 3 chemical reactions are combination reaction, ठीक है? ये एक respiration है और एक burning of methane gas है, they are not combination reaction, they are just exothermic reaction, they are example of exothermic reaction. So this is about combination reaction and exothermic reaction. Now let's study about decomposition reaction. तो decomposition reaction है ना, एकदम combination reaction से उल्टा है। अंडरस्टूड? ये 3 रिएक्शन अगर ऑपोजिट वे में होता तो ये तीनों रिएक्शन ही इन द ऑपोजिट वे, मतलब ये रिएक्टेंट और वो साइड प्रोडक्ट, इस तरीके से अगर रिएक्शन होता तो वही उसको ही हम लोग बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? तो चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? ओके, तो यहां पर ये रिएक्शन मैं रब कर देता हूं। पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज ऑफ फेरस सल्फेट। पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि दिस यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है? चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं फेरस सल्फेट का। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है? एक्चुअली फेरस सल्फेट हाइड्रस फॉर्म में मिलता है, जहां पर फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? जैसे शुगर पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे फेरस सल्फेट के छोटे छोटे ग्रीन कलर के लाइट ब्लू ग्रीन, राइट? ये बोर्ड का जो कलर है ना उससे लाइट शेड, ठीक है? थोड़ा थोड़ा यही वाला शेड, लेकिन काफी लाइट शेड होता है। तो फेरस सल्फेट लाइट शेड से बना, लाइट शेड कलर का होता है, हाइड्रस वन, ठीक है? जब उसको पहले हीट करते हैं तो उसमें से पहले वाटर जो है वो निकल जाएगा। एक्चुअली FeSO4.7H2O होता है, मतलब हर फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिटेनिंग, ठीक है? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके आजू बाजू में होता है, जिसकी वजह से इसके ग्रीन कलर के क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तब पहले ये जब वाटर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तब इसके क्रिस्टल जो है व्हाइट कलर के हो जाएंगे। तो विच वॉज bluish green type of color, now it is in white color, ठीक है? अब वो white color का है। अब अभी तक जो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है? अभी तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हुआ है। अब हम लोग फर्दर हीट करेंगे तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। नाउ व्हाट केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग हियर, लेट्स सी। ठीक है? तो ये था फेरस सल्फेट,
ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। अंडरस्टूड? Fe फेरस और फेरिक मतलब आयरन है। फेरस मतलब जब उसका चार्ज +2 होता है तब उसको फेरस बोलते हैं, जब उसका चार्ज +3 होता है तो उसको फेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट था, जब उसको हीट किया तो उसमें उससे बन गया फेरिक ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स थे। अब व्हाइट कलर का सॉलिड था, राइट, दिस इज व्हाइट कलर सॉलिड स्ट्रक्चर। अब ये हो जाएगा कुछ रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। अंडरस्टूड? और उसके साथ साथ दो और गैस इवॉल्व होंगे, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। इसमें सल्फर और डाइऑक्साइड है, इट इज हाईली कंसीडर्ड पोल्यूटेंट। अंडरस्टूड? तो ये रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन में अगर देखें तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, ओनली वन रिएक्टेंट इज देयर एंड देयर वर मेनी प्रोडक्ट्स इन इट, राइट। तो ये फेरस सल्फेट है, इसको हीट किया तो इसमें से फेरिक ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्मिंग ओवर हियर। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज, आई मीन यहां पर भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट, लेट्स बैलेंस इट। तो 2Fe, यहां पर 2Fe, 2 सल्फर, 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं 8 3 3। तो ऑक्सीजन यहां पर अलग से पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। अंडरस्टूड? यही ऑक्सीजन है जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में और फेरिक ऑक्साइड में भी एज ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अगर इसको हीट करते हैं तो यही रिएक्शन होगा, राइट। फेरस सल्फेट विल प्रोवाइड फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अंडरस्टूड? ओके, now let's move to the next chemical reaction, that is it is chemical reaction of calcium chloride, that is limestone। कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कैल्शियम क्लोराइड बोला, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन होता है तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसको भी हीट करना पड़ेगा। ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में। अब आपको ये रिएक्शन देख के कुछ लग रहा है? अब ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट वो व्हाइट वॉश में प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, वो किसमें से प्रोड्यूस होता है? स्लेक्ट लाइम में। स्लेक्ट लाइम हम लोग ने किसमें से बनाता है? क्विक लाइम में। क्विक लाइम और कुछ नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ही था, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज क्विक लाइम। ठीक है, तो देखो लाइमस्टोन में भी सेम केमिकल फॉर्मूला है जो चौक में फॉर्मूला है, जो व्हाइट वॉश में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ था, दैट केमिकल ओनली इज देयर इन ऑल दिस थिंग्स, राइट। अगर यहाँ पर इसको हीट करें तो जो हम लोग ने रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में देखा था देखो एकदम उल्टा है। देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। अंडरस्टूड? तो दिस आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर भी यही ऑक्सीजन दो जगह पर बढ़ रहा है, राइट, वन टू कैल्शियम एंड अनदर टू कार्बन। अंडरस्टूड? सो दिस इज आल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। What is this? This is lead nitrate. And this is lead oxide. जब ये केमिकल रिएक्शन होगा, when this chemical reaction is occurring, यहाँ पर चलो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो एक लेड। ऑक्सीजन को बाद में देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितने टोटल? 3 2 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 2 4 2, तो 2 2 4 प्लस 2 एंड यहाँ पर 6 हो रहा है। ठीक है, तो और भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 बार लेड। अंडरस्टूड? अब नाइट्रोजन कितनी बार हो गया? तो 2 बार नाइट्रोजन तो है ही।
अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 4। अंडरस्टूड। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 तो है, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 2 4 2 जा 8 और यहां पर 2 हो गया ना 12। Understood? Now this reaction is balanced. This is balanced chemical equation now. Understood? अगर आपने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं आपको नहीं अभी तक आपको नहीं मालूम है, तो आप पहला पार्ट में चैप्टर का देख लो, ठीक है। इसमें मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे बैलेंस करना है। चलिए आगे की केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। Silver chloride, when silver chloride is provided sunlight, ठीक है, यहां पर सिर्फ सनलाइट देना है और ये 3 रिएक्शन में हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी हीटिंग करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। और ये केमिकल, चलो सिल्वर क्लोराइड अभी थोड़ा देर बात कर रखते हैं, लेकिन ये रिएक्शन का और एक चीज मैं डिस्कस करता हूँ। ये रिएक्शन जब होता है तो टेस्ट ट्यूब में एकदम से ऊपर में ब्राउन कलर फॉर्म होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म होता है। वो किसका फॉर्म होता है, वो कलर है ना, ये गैस का फॉर्म होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन इन कलर और ये पूरा टेस्ट ट्यूब, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा ना, तो पूरा टेस्ट ट्यूब में लेड ऑक्साइड के ऊपर पूरा टेस्ट ट्यूब ब्राउन कलर का हो जाएगा, अंडरस्टूड। अंदर से ब्राउन कलर का हो जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, अंडरस्टूड। ओके, चलो अब सिल्वर क्लोराइड में आ जाते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड केमिकल जो है वो पाउडर है, दैट पाउडर इज व्हाइट इन कलर, अंडरस्टूड। जब इसको सनलाइट दिया जाता है तो ये फॉर्म होता है फिर सिल्वर एंड क्लोरीन अलग हो जाता है, अंडरस्टूड दिस। When silver chloride is provided with sunlight, it is forming silver metal and chlorine gas. ये डाइक्लोरीन गैस को हवा में उड़ के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सिल्वर बन रहा है वो सिल्वर है ग्रे कलर का, तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड में ग्रे कलर का सिल्वर बनेगा। तो कलर चेंज से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, ठीक है। ऐसे ही और एक सिल्वर वाला रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर भी सनलाइट ही देना है, सेम केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर फिर से हम लोग बैलेंस करके देख लेते हैं, अंडरस्टूड। दिस इज हाउ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग ओवर हियर। यही केमिकल रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ठीक है। सो दिस अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच नो अदर केमिकल इज एडेड ओनली फ्रॉम वन रिएक्टेंट मोर देन 2 or more than 2 products are forming, right? 2 or more than 2 different type of chemicals are forming. So this is about decomposition reaction। तो यहाँ पर हम लोग ने दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर मैं और एक चीज नोटिस करने के लिए बोलूंगा कि देखो यहाँ पर हर केमिकल रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। In combination reaction, every chemical reaction that we have studied is exothermic type of reaction, and in decomposition reaction, all these reactions are endothermic type of reactions. We have to provide heat or sunlight over here. तो दोनों में देखो हम लोग ने 5 केमिकल इक्वेशंस पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 5 केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पर भी 5 केमिकल इक्वेशंस, 3 केमिकल इक्वेशंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और 2 केमिकल रिएक्शन जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और यहाँ पर 5 केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पढ़े, और वही केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी है, ठीक है। दे आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जिसमें हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, इधर इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी और समथिंग एल्स, राइट, और दूसरा कोई फॉर्म में एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिमेनिंग चैप्टर वहां पर नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। इन विच वी विल स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे कोरोजन का थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि कोरोजन हम लोग सारा 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज रैंसिडिटी वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये all these chemical reactions needed to be right 2 to 3 times to learn it, right?
और ये आपको सिर्फ एक ही बार में लर्न होगा, फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा और हर रिवीजन के टाइम पे आपको ये केमिकल रिएक्शंस फिर से लिखने पड़ेंगे. You will not forget any kind of information in here, that is either they are in solid form, gaseous form, liquid form, gaseous or aqueous form, what kind of conditions they require. ठीक है, कुछ कुछ जगह पर नाम भी दिए हुए हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है, लाइमस्टोन, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड. तो ये नेम भी आपको केमिकल रिएक्शंस में लिखने होंगे जहां जहां पर दिया है. ठीक है, और जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे यहाँ पर विगरसली रिएक्शन होता है, अंडरस्टूड. यहाँ पर कोल है, दिस इज नॉट जस्ट एनी अदर कार्बन. कार्बन सॉलिड, आई मीन कोल में होता है, डायमंड में होता है, ग्रेफाइट में होता है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज में कोल होता है. ठीक है, बट कौन सा कार्बन, सॉरी बहुत सारी अलग अलग चीज में कार्बन होता है, नॉट कोल. लेकिन कौन से एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें कार्बन है, तो दैट इज कोल. तो वी हैव टू मेंशन हियर कोल, अंडरस्टूड. और मीथेन गैस, तो यहाँ पर याद रखना है कि मीथेन गैस ये वाला कौन सा गैस है, वही गैस जो हम लोग सीएनजी में यूज करते हैं. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर भी नाम लिखना है, understood. So all these things is whatever is written in board, everything is important for you, and you will mention all these things in your notebook or in your एग्जाम पेपर while you were writing. ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई यू मेंशन. एंड केमिकल रिएक्शंस, अगर आपको केमिकल इक्वेशंस अगर आपको लर्न करने हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, अंडरस्टूड. तो इतना ज्यादा मत लिखो, 3 बार लिखो जब लर्न कर रहे हो, और रिवीजन करने के टाइम में 2-2 बार लिखना. ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे एक बार वीकली रिवाइज करो, फिर एक बार मंथली रिवाइज कर लो, फिर आपकी जब एग्जाम आ रहे हैं उस टाइम में रिवाइज कर लो. ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा. बट यू हैव टू मेंशन, आपको ऐसे भी चेक करना पड़ेगा कि आप बिना देख के जब लिख रहे हो, इवन इन रिवीजन टाइम, आप जब बिना देख के लिख रहे हो, तो आर यू मिसिंग आउट एनी इंफॉर्मेशन? एंड इफ यू आर मिसिंग आउट एनी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स यू हैव फॉरगॉट दोस थिंग्स, राइट. आपको कोई भी चीज यहाँ पर भूलनी नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है, अंडरस्टूड. सो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. इनफ फॉर दिस वीडियो.